for your very much informative and very much weighty informations about the ICT tools in teaching and learning, or especially effective teaching and learning. I myself have got so many new ideas, new thoughts about ICT tools in relation to teaching and learning process. Once again, I thank Faizi Alim sir, or Professor Faizi Alim sir. Now we are going to have another resource person who is going to bring in front of you some new aspects of ICT and its more and more advantages, so that we can get the utility completely of ICT tools. Now we are having, or we are going to have Professor Razi Anwar sir, the HOD of Computer Science Department and the organizer of this webinar. Sir, please do come and share your precious, your valuable thoughts, ideas about ICT tools in the light of your very valuable assessment activities. My session is totally practical based, and there is no any type of presentation here. Here I am just sharing my screen to you and will tell you what are the features of Zoom applications, what are the advantages of Zoom applications, what are the limitations of Zoom applications. After that, I will start a Google Meet session with students of computer science for demonstrating you how to start Google Meet and how to join the student in Google Meet, how to present the screen by using Google Meet. So if you are observing, I am sharing my actual screen to all of your please mute yourself. I am requesting you again and again. I can mute yourself because somebody in a message is typing mute. Muting is done from the admin. Admin can mute the participant, but if admin is again and again admitting and muting the participant, then how can admin present his opinion to the student? Please cooperate. Please mute all. All participants are requested here. Please mute. Technical problem is there. Please mute. So let us start our session. This is our screen. When we start our Zoom app, you can observe this screen. Now, please let us consider the interface. Let us learn the interface which is provided by the Zoom app. When we start the meeting in the Zoom app, then some screen will be displayed on the your desktop, which will be like this. Now this part, we are talking about this part.
you can see the mute option. This option is used for muting yourself in the meeting. For example, देखिए मैं उर्दू में ही आप लोगों को बतलाता हूँ कि अगर आप लोग एक मीटिंग स्टार्ट करते हो गूगल ये जूम की मदद से, और इसमें बीच के मीटिंग के बीच में आपको किसी और से बात करना है या आपके ही बैकग्राउंड में कुछ डिस्टरबेंस वगैरह है, तो ऐसी सिचुएशन में आप पहले अपने आप को म्यूट कीजिए, फिर उसके बाद किसी से बात कीजिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो आपका म्यूट रहता है, ये आपको म्यूट करेगा, ये पार्टिसिपेंट को म्यूट नहीं करेगा। ये एक चीज याद रखिए। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन जो है, जिसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, ये स्टॉप वीडियो है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी और साइड में मेरा एक वीडियो भी दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टिसिपेंट आपको देख ना पाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर स्टॉप वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आपने अपनी स्क्रीन को शेयर किया है और आपका वीडियो भी स्टार्ट है, तो आपकी स्क्रीन भी दिखेगी और आप खुद भी दिखोगे। लेकिन अगर आपने स्टॉप वीडियो कर दिया, तो इसकी वजह से स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आपकी स्क्रीन बराबर से आपके पार्टिसिपेंट को दिखते रहेगी। सिर्फ वो आप जो दिख रहे थे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर साइड में, वो आपको नजर नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के लिए स्टॉप वीडियो करता हूँ। मैं आई थिंक जो है ये स्क्रीन से इनविजिबल हो गया हूँगा। और फिर उसके बाद मैं वापस से स्टार्ट वीडियो करता हूँ। जैसे ही मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा, मैं वापस से पार्टिसिपेंट को नजर आने लग जाऊंगा। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है सिक्योरिटी का। इसका यहाँ पर फ्री वर्जन, मोस्टली हम लोग जब गूगल जूम को यूज करते हैं तो फ्री वर्जन यूज करते हैं। तो इसमें ये सिक्योरिटी ऑप्शन जो है ये इतना ज्यादा वर्किंग नहीं करता है। इसमें यहाँ पर बाय यूजिंग द सिक्योरिटी ऑप्शन यू कैन लॉक द मीटिंग, you can enable waiting room, you can share as well as unshare the screen, you can enable or disable chat option, you can rename the theme, you can unmute the theme, you can remove the participant by using the security option. जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्टिसिपेंट जो है ये आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि हम लोग बोल रहे हैं कुछ पार्टिसिपेंट को कि प्लीज म्यूट यूर सेल्फ, प्लीज म्यूट यूर सेल्फ, लेकिन वो अगर आपको वो म्यूट नहीं करते हैं, आप उनको म्यूट करते हो, वापस से वो आपको अनम्यूट कर देते, वो अपने आप को अनम्यूट कर देते हैं और मीटिंग में डिस्टर्बेंस करते हैं। तो उसके लिए आप उनको यहाँ से रिमूव कर सकते हो बाय यूजिंग द सिक्योरिटी ऑप्शन। फिर उसके बाद इफ यू वांट टू सी द लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट, तो लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे अभी यहाँ पर आपको बतलाया जा रहा है देयर आर टोटल 251 पार्टिसिपेंट। जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनका नेम की लिस्ट यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी। फिर इसी तरीके से जब आप लोग पार्टिसिपेंट नाम के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो इसमें यहाँ पर दो ऑप्शन आपको और नजर आएगा। एक ऑप्शन आपको दिखेगा एडमिट ऑल करके, और इसमें यहाँ पर आपको ये भी बताएगा कि आपके गूगल की जूम की मीटिंग के अंदर कितने पीपल अभी तक वेटिंग में हैं, यानी किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए ड्यूरिंग मीटिंग। आप उनको जो है ये एडमिट ऑल की बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मसला ये होता है कि जैसे ही आप किसी नए पार्टिसिपेंट को मीटिंग में ज्वाइन करते हो, तो वो हो सकता है कि जब आपकी मीटिंग में ज्वाइन होगा तो उसका ऑडियो जो है ये ऑन रहेगा, फिर उसकी वजह से दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस होने लग जाएगा। तो इस डिस्टर्बेंस को सॉल्व करने के लिए इसी ये जो विंडो होती है इसके अंदर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है म्यूट ऑल करके। म्यूट ऑल करके ऑप्शन पर जब आप लोग क्लिक कर दोगे तो फ्रॉम एडमिन पैनल, फ्रॉम एडमिन साइड आप अपने पार्टिसिपेंट को जिसको अभी आप लोगों ने एडमिट किया है वो म्यूट हो सकता है। तो पार्टिसिपेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये सारे ऑप्शन मिलते हैं कि अगर कुछ लोग वेटिंग में पड़े हैं आप उनको एडमिट कर सकते हो, तमाम पार्टिसिपेंट को म्यूट करना है आप म्यूट कर सकते हो, कोई न्यू पार्टिसिपेंट को आपको इनवाइट करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक इनवाइट नाम का भी ऑप्शन होता है।
तो ये स्क्रीन के अंदर ये जो टूल बॉक्स है उसके अंदर पार्टिसिपेंट में आपको सब मेनू मिलता है। मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको सब मेनू भी बताऊंगा कि देखिए पार्टिसिपेंट पर क्लिक करने पर ये सब मेनू आता है। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर। अभी करंटली यू आर शेयरिंग स्क्रीन का एक मैसेज आपको दे रहा है, क्योंकि अभी मेरी स्क्रीन जो है आप लोगों को मैंने शेयर की है। लेकिन अगर आप लोगों को ये स्क्रीन के अलावा कुछ नया शेयर करना है तो आई कैन चूज दिस ऑप्शन न्यू शेयर। न्यू शेयर ऑप्शन जैसे ही मैं यूज करूंगा यहाँ पर मुझको जो है ये बतलाया जाएगा कि मुझको क्या शेयर करना है। जैसे अगर मुझको एक व्हाइट बोर्ड चाहिए, न्यू शेयर में जाने के बाद एक ऑप्शन मुझको मिलता है व्हाइट बोर्ड का। अगर मैं व्हाइट बोर्ड लेकर शेयर पर क्लिक करता हूं तो आप लोगों को स्क्रीन पर एक व्हाइट बोर्ड नजर आएगा। इस व्हाइट बोर्ड पर आई कैन राइट सम टेक्स्ट as per my requirement. I can draw some drawings. I can draw some, I can stamp some figures. I can erase the drawings. तो वट एवर इट मे बी, आपको एक वर्किंग एरिया मिल जाता है न्यू शेयर में जाकर व्हाइट बोर्ड लेकर। अब यहाँ पर मैं वापस से ये जो वर्किंग एरिया आप लोगों को मिला है जिसको हम लोग यहाँ पर व्हाइट बोर्ड कहते हैं, इसको अगर आप लोगों को बंद करके आपको वापस से अपनी प्रीवियस स्क्रीन पर आना है तो उसके लिए आप व्हाइट बोर्ड को जस्ट बंद कर दीजिए। फिर शेयर स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद स्क्रीन शेयर कीजिए। आपको वापस से आपके पार्टिसिपेंट को आपकी स्क्रीन वापस से नजर आने लग जाएगी। तो यहाँ पर शेयरिंग में जो है ये साइमल्टेनियस नहीं चलेगा। जब आप व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहे थे तो आपकी प्रीवियस शेयरिंग हट गई थी, और फिर उसके बाद जब आपने व्हाइट बोर्ड को बंद किया तो अब वापस से आप लोगों को अपनी प्रीवियस शेयरिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा, वापस से आपको इसको शेयर करना पड़ेगा। ये एक हम लोग कह सकते हैं दिस इज द लिमिटेशन ऑफ जूम ऐप, कि अगर आप जैसे ही न्यू शेयरिंग करते हो प्रीवियस शेयरिंग हट जाती है, न्यू शेयरिंग ओवरराइट हो जाती है। फिर उसके बाद जब न्यू शेयरिंग को बंद करोगे तो प्रीवियस शेयरिंग को स्टार्ट करने के लिए वापस से आपको शेयरिंग करना पड़ता है। फिर इसी तरीके से ड्यूरिंग सेशन इफ यू वांट टू पॉज योर शेयरिंग, यानी थोड़ी देर के लिए अगर आप अपनी शेयरिंग को पॉज करना चाहते हो, मीटिंग को पॉज नहीं करना है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट ऑप्शन है एनोटेट। एनोटेट ऑप्शन, जैसे आप ऐसा समझिए कि आप अपने शेयरिंग के अंदर आई थिंक आप ऐसा समझिए कि आप कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को यूज कर रहे हो और कोई चीज को इंडिकेट करना है। जैसे यहाँ पर मैं ये इसको हाईलाइट किया था, मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो देखिए ये हाईलाइट हो रहा है, ये इस तरीके से, ये एनोटेशन कहलाता है। और आप इसको देख सकते हो, जैसे अभी ये है रिमोट कंट्रोल, ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया। और अभी देखिए हमारे कोई पार्टिसिपेंट जो है ये इतने जज्बे में आ गए कि उन्होंने भी अपना एनोटेट ऑप्शन जो है ये यूज करना शुरू कर दिया, और उनकी एक्टिविटीज जो है ये मेरी शेयरिंग पर, मेरी स्क्रीन पर भी दिख रही है और आप लोगों की स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। तो पार्टिसिपेंट प्लीज, आपको जो है अभी ये सारे ऑप्शंस जो है ना ये सिर्फ वो देखने हैं, आपको प्लीज जो है ये यूज नहीं करने हैं। जब आप पर्सनल अपनी मीटिंग करोगे तो प्लीज उस वक्त तो आप ये एनोटेट ऑप्शन को यूज करना, प्लीज प्लीज पार्टिसिपेंट। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एनोटेट ऑप्शंस आपको जो नजर आ रहा है उसमें से आप जो है ये एक पेन लाइक आपको एक कर्सर मिलता है, जिससे आप अपनी स्क्रीन जिसको आप शेयर कर रहे हो इसमें किसी पोर्शन को अगर आप लोगों को हाईलाइट करना है, किसी चीज को इंडिकेट करना है, तो आप इस एनोटेट ऑप्शन को यूज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ये इतने ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पर दिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है, मैं वो आप लोगों को बतलाता हूँ। यही टूल बॉक्स के ऊपर एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, मोर लिखा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है, और मोर के ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है, मोर का जो ब्रैकेट है यहाँ पर लिखा हुआ है, मोर के आगे 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब देयर आर 6 पार्टिसिपेंट्स विच आर वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग यूर मीटिंग। तो ऐसे लोगों को जो कि आपकी मीटिंग में ज्वाइन होना चाहते हैं लेकिन वो लोग वेटिंग में है, तो कुछ लोग तो क्या करते हैं कि नहीं मैंने मीटिंग शुरू कर दी, अभी किसी को ज्वाइन नहीं करूंगा, क्या बार बार यही करते बैठूं क्या कि लोगों को ज्वाइन करूं, लोगों को ज्वाइन करूं। तो कुछ लोग जो है ये क्या करते हैं, ऐसे पार्टिसिपेंट को इग्नोर कर देते हैं और उनको मीटिंग में ज्वाइन नहीं करते। लेकिन दिस इज नॉट द बेटर प्रैक्टिस।
अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी मीटिंग से फायदा उठाएं और आप चाहते हो कि वो लोग भी आपकी मीटिंग में बाद में आए हैं, चलो ठीक है लेट आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी वजह से हो सकता है वो मीटिंग से एग्जिट हो गए होंगे, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा होगा, अब वो वापस से इंटर होना चाहते हैं, तो यहाँ पर वेटिंग में कितने लोग हैं वो आपको दिखेंगे। अब आपको उनको ज्वाइन करना है, उनको ज्वाइन करने के लिए आपको अगेन पार्टिसिपेंट नाम का एक जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर पार्टिसिपेंट नाम का जो ऑप्शन यहाँ पर है, उस पर आना है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को वेटिंग रूम में बतलाएगा कितने लोग वेटिंग है, उनको आप एडमिट ऑल कीजिए। और फिर उसके बाद जैसे ही आप उनको एडमिट करोगे तो ये नए आने वाले, वापस से एक पॉसिबिलिटी है कि नए आने वालों का ऑडियो जो है ये म्यूट ना हो, तो प्रिकॉशनरी एक म्यूट ऑल नाम की एक बटन है, उस पर क्लिक करके अपने पार्टिसिपेंट के ऑडियो को अगेन एंड अगेन म्यूट करते चलिए। अदरवाइज नहीं तो होगा क्या, आप लोगों ने देखा है अभी अपना जो पिछला सेशन हुआ था सेशन 1, इसमें कुछ पार्टिसिपेंट जो है ये जब जैसे ही उनको एडमिट हम लोग कर रहे थे तो वो उनका ऑडियो म्यूट नहीं था, और एडमिन की तरफ से भी ऑडियो म्यूट जब नहीं होने पा रहा था तो बहुत ढेर सारा डिस्टर्बेंस आ रहा था। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को याद रखनी है। अब मैं आप लोगों को ये बतलाता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन की जानिब ले जाकर कि जब आप लोग सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं और उसका क्या यूज होता है। प्लीज वेट। Please wait. I am sharing my screen. तो देखिए जब आप लोग सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा, पहला ऑप्शन रहेगा आपका लॉग मीटिंग, दूसरा रहेगा इनेबल वेटिंग रूम। जैसे अभी मैंने अपने वेटिंग रूम को इनेबल करके रखा है तो कुछ लोग आ रहे हैं, मैं उनको एडमिट कर रहा हूँ, और फिर बार बार कुछ लोग जो है ये मुझसे परमिशन मांग रहे हैं मीटिंग को ऐड होने के लिए। अगर आपने ये जो इनेबल एडमिट रूम जो ये ऑप्शन है ना, यहाँ पर से ये टिक मार्क हटा दिया तो फिर इसका मतलब जब आप लोग मीटिंग ले रहे हो और आप चाहते हो कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बार बार कोई आपको आकर वो ये ना बोले कि प्लीज एडमिट मी, प्लीज एडमिट मी, तो ये ऑप्शन जो है आप इसको डिसेबल कर सकते हो। अलाउ पार्टिसिपेंट टू शेयर स्क्रीन, अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टिसिपेंट उनकी स्क्रीन शेयर कर सकें तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अलाउ पार्टिसिपेंट टू चैट विथ यू एंड ऑल अनदर पार्टिसिपेंट, तो ये ऑप्शन आपने इनेबल करके रखा है, मैंने इसको इनेबल करके रखा है। इसकी मदद से आपके पार्टिसिपेंट जो है ये चैटिंग भी कर सकते हैं, और आपके प्रॉब्लम अगर कुछ पार्टिसिपेंट जो है आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आपने उनको म्यूट करके रखा है तो वो चैटिंग ऑप्शन के अंदर जाकर आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से जो थीम होती है उसको रीनेम करने के लिए ये ऑप्शन यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसको इस ऑप्शन की मदद से आप रिमूव कर सकते हो। तो ये जो है मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सिक्योरिटी नाम का जो ऑप्शन जब आप लोग सिलेक्ट करोगे तो उसके अंदर ये सब ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब उसके बाद मैं वापस से देखिए कुछ पार्टिसिपेंट को मैं एडमिट करता हूं, उनको म्यूट करता हूं, थोड़े देर के लिए मेरी स्क्रीन को अनशेयर करता हूं ताकि नई स्क्रीन शेयर की जा सके, जिसमें आपको मैं ये बतलाऊंगा कि जब आप पार्टिसिपेंट नाम के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो एक्चुअली क्या होता है।
देखिए अब वापस से मैं यहाँ पर आप लोगों को बतलाता हूँ, जब आप लोग पार्टिसिपेंट नाम के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको देखिए ये ऑप्शंस कुछ नजर आ रहे हैं यहाँ पर, कि आपको ये बतलाएगा कि कितने लोग वेटिंग रूम में हैं। पार्टिसिपेंट पर जब आप लोग क्लिक करोगे सबसे पहले यहाँ पर ये बतलाएगा कि एक्टिवली कितने लोगों ने अभी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। जैसे अभी आप लोगों को ये बतलाया जा रहा है देयर आर टोटल 249 पार्टिसिपेंट इन दिस मीटिंग। फिर उसके बाद यहाँ पर वेटिंग रूम में 3 दिया हुआ है। ये 3 को जो है ये मैं एडमिट ऑल पर क्लिक करूंगा तो उनको भी एडमिट कर लूंगा। फिर उसके बाद मैं जो बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जैसे ही आप न्यू पार्टिसिपेंट को आप एडमिट करोगे तो उसके बाद जो है ये इनको म्यूट कीजिए। म्यूट करने के लिए आप ये ऑप्शन लीजिए म्यूट ऑल। देखिए एक चीज आप लोग याद रखिए, यहाँ पर ये जो टेक्निकल सेशन हो रहा है इसमें कुछ ऑप्शंस जो है अगर आप लोग इसको याद रखते हो और इसको राइट डाउन कर लेते हो तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि हम लोग जो है आज के दिन तो नहीं लेकिन कल आज जो भी सेशंस हो जाएंगे, देयर आर 4 सेशन जिसमें से ये दूसरे नंबर का सेशन चल रहा है, तो 4th सेशन के बाद कल के रोज दिन भर के लिए एक टेस्ट लिंक आप लोगों को मेल की जाएगी गूगल फॉर्म की मदद से, जिसमें कुछ क्वेश्चंस टेक्निकली पूछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि विच ऑप्शंस आर प्रेजेंट अंडर द पार्टिसिपेंट ऑप्शंस। तो यहाँ पर उसमें दिया हुआ रहेगा मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल करेक्ट आंसर का क्वेश्चन रहेगा, एडमिट ऑल ऑप्शन इज प्रेजेंट, म्यूट ऑल ऑप्शन इज प्रेजेंट, इनवाइट ऑल यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा। तो म्यूट ऑल आप यस बोलोगे, एडमिट ऑल आप यस बोलोगे, इनवाइट ऑल नाम का ऑप्शन नहीं है बल्कि इनवाइट नाम का ऑप्शन है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स और टेक्निकल ये जो चीजें हैं जो मीनूस के अंदर जो आपको ऑप्शंस बतलाए जा रहे हैं, आप प्लीज जो है ये ऑप्शंस याद रखिए ताकि आपको टेस्ट देने में आसानी हो। टेस्ट देने का आपको एडवांटेज ये रहेगा, अभी आप जितने लोग भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इन लोगों को हम लोग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन जो लोग टेस्ट देंगे और टेस्ट के अंदर मोर देन 50% मार्क्स को स्कोर करेंगे तो उनके लिए हम लोगों ने मेरिट सर्टिफिकेट जो है ये प्रिपेयर करके रखा है। तो ये मेरिट सर्टिफिकेट भी आपको दी जाएगी जिसकी मदद से आप जो है ये अपने करियर के अंदर इसको यूटिलाइज कर सकते हो कि यू आर ICT टू you learn the advanced ICT tools which can be used in today online learning। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को ये बतला रहा था कि जब आप लोग पार्टिसिपेंट नाम का जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर आप लोगों को ये इतने ऑप्शन मिलते हैं, मैसेजिंग के ऑप्शन मिलते हैं, एडमिट ऑल का ऑप्शन मिलता है, म्यूट ऑल का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को मैं बतलाना चाहता हूँ कि साथ साथ में हम लोग यहाँ पर ये देखते चलते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि देयर आर टोटल 249 पार्टिसिपेंट। तो ये अगर आप एक ऐसी मीटिंग लेना चाहते हो जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है ये मोर देन 100 हैं, तो उसके लिए आप उसके लिए आपको जूम का पेड वर्जन यूज करना पड़ेगा। अगर आप जूम का फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो इसके अंदर ये एक लिमिटेशन है, एक रिस्ट्रिक्शन है कि यू कैन नॉट ऐड 101 पार्टिसिपेंट और यू कैन नॉट ऐड मोर देन 100 पार्टिसिपेंट इन योर मीटिंग। तो अगर आपको पहले से मालूम है कि आप जो मीटिंग लेने के लिए जा रहे हो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है ये मोर देन 100 है, तो उसके लिए आपको जूम का पेड वर्जन यूज करना पड़ेगा। ये एक चीज हो गई जो कि आपके जूम के लिमिटेशन को बतला रही है। उसका ये डिसएडवांटेज नहीं है बल्कि ये फ्री वर्जन का लिमिटेशन है। अब उसके बाद देखिए मैं कुछ और टेक्निकल बातें आप लोगों को बतलाता हूं जो कि जूम के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक लिमिटेशन बतलाया, लेकिन देखिए जूम मीटिंग का यूज करने का एक एडवांटेज ये होता है कि इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर ऑडियो के अंदर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एक थोड़ा सा मिलीसेकंड का डिले होता है। जैसे अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वो चीज आप लोगों के पार्टिसिपेंट को सुनने में तो आएगी। जैसे अभी मैं आप लोगों को कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे जो लिप्स की मूवमेंट है वो पहले हो जा रही होगी और आप लोगों को आवाज जो है ये बाद में आ रही होगी। तो ये थोड़ा सा एक लिमिटेशन है जूम के अंदर, जो कि दूसरे एप्लीकेशन जिसको हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं जिसका नाम है गूगल मीट, उसके अंदर ये लिमिटेशन मौजूद नहीं है कि उसके अंदर जो है ये साउंड क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन गूगल मीट की साउंड क्वालिटी और जूम की साउंड क्वालिटी को अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो जूम की साउंड क्वालिटी जो है ये ज्यादा बेटर है।
अभी हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑनलाइन लर्निंग का जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है कोविड-19 के ये लॉकडाउन के पीरियड में, तो इसमें यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की है कि कुछ टीचर्स जो है एक्चुअली क्या करते हैं कि अपने ब्लैक बोर्ड को शेयर करते हैं और अपने स्टूडेंट को मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद ब्लैक बोर्ड शेयरिंग करने के बाद जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग होती थी वैसे ही अपने ब्लैक बोर्ड को जूम के थ्रू जो है ये शेयर कर देते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की है कि स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होने पाता है। तो अगर आप जो है ये जूम ऐप को यूज करना चाहते हो अपनी ऑनलाइन टीचिंग के अंदर, अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर, तो सबसे आसान ऑप्शन तो ये है कि आप जूम को स्टार्ट कीजिए और आपके ब्लैक बोर्ड को जूम की मीटिंग के अंदर शेयर कर दीजिए। लेकिन उससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा, अगर आप स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहते हो तो उसके लिए बेटर ऑप्शन ये रहेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी कि बिफोर स्टार्टिंग द क्लास सेशन, बिफोर स्टार्टिंग योर मीटिंग, आप एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना लीजिए और प्रेजेंटेशन बनाने के बाद विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन आप अपने पार्टिसिपेंट को कोई भी टॉपिक को टीच कीजिए। डायरेक्टली आपके व्हाइट बोर्ड को, डायरेक्टली आपके ब्लैक बोर्ड को जब आप पार्टिसिपेंट को शेयर करते हो तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी साउंड का प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी आई थिंक जो है अभी आप लोगों को साउंड का प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, लेकिन कभी कभी आप लोगों को साउंड का प्रॉब्लम जो है ये आएगा क्योंकि आपका जो डिवाइस है जो आपकी स्क्रीन को शेयर कर रहा है और आप जो है ये बोर्ड के पास हो, दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। फिर उसके बाद आपके पार्टिसिपेंट की एक्टिविटीज जो है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं, आपको नजर नहीं आती हैं। फिर इसी तरीके से कोई न्यू पार्टिसिपेंट अगर आपसे कुछ कांटेक्ट करना चाहता है या कोई न्यू पार्टिसिपेंट एडमिट होना चाहता है तो आपको जो है ये बोर्ड छोड़ कर आना पड़ेगा। अभी जैसे देखिए मीटिंग चालू है, अगेन एंड अगेन कुछ लोग जो है ये एडमिट होना चाह रहे हैं, मैं मीटिंग के साथ साथ आप लोगों को एड्रेस करते हुए उनको एडमिट भी कर रहा हूँ और अगेन एंड अगेन मैं म्यूट भी करते जा रहा हूँ। क्योंकि जनरली हम लोगों ने ये देखा है कि जब क्लासरूम टीचिंग के अंदर जब बच्चे जो है आपके पार्टिसिपेंट के तौर पर ऐड होते हैं तो कुछ बच्चे जो है अपना ऑडियो ऑन कर लेते हैं, तो क्लास टीचर बार बार उनको बोलती है कि प्लीज आप अपना ऑडियो जो है ये म्यूट कीजिए, या फिर टीचर को अपना काम छोड़कर यानी बोर्ड से हटकर यहाँ पर आना पड़ता है। ये एक चीज होगी। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऐसा कोई ऑनलाइन आपको कोई क्लास लेनी है तो उसके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि पहले आप एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना लीजिए और विद द हेल्प ऑफ दैट प्रेजेंटेशन उस प्रेजेंटेशन को स्क्रीन पर शेयर कीजिए और उसके बाद साथ में आप अपना वीडियो भी शेयर करना मत भूलिए। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जब जो एड्रेसी होता है वो पार्टिसिपेंट को नजर नहीं आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पार्टिसिपेंट को नजर नहीं आती है, तो पार्टिसिपेंट, और खास तौर से अगर हम लोग छोटे बच्चों की बात करेंगे और स्टूडेंट की बात करेंगे तो उनके अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं आने पाता है। तो इसके लिए आप अपना ऑडियो हमेशा अपना वीडियो भी ऑन कीजिए और विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है आप अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कीजिए, अपनी टीचिंग को परफॉर्म कीजिए। हाँ, अगर आप कोई टेक्निकल सेशन लेना चाहते हो, जैसे अभी अगर आप कंप्यूटर साइंस टीचर हो और आपको कोई चीजें जो है ये ऑनलाइन बतलानी है, लाइव बतलानी है, जैसे अभी मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, ये स्क्रीन मैंने शेयर कर ली है। मैंने यहाँ पर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस वजह से नहीं बताया, इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि मुझको जो भी चीजें आप लोगों को बतलानी थी वो मुझको लाइव बतानी थी। तो यहाँ पर ये इतने जो फीचर्स हैं ये जूम के फीचर्स हो गए। यहाँ पर मैंने आपको बतलाया कि जूम के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, फ्री वर्जन और पेड वर्जन में क्या डिफरेंस होता है। आपके अगले सेशन के अंदर एक्चुअली पूरा हमारे जो नेक्स्ट सेशन के जो एड्रेसी रहेंगे वो आप लोगों को डिफरेंस बतलाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट टूल्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन ऑनलाइन टीचिंग। तो यहाँ पर अपना ये जो सेकंड सेशन था इसमें जो टॉपिक था हाउ टू यूज जूम ऐप, वो मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ एक रिक्वेस्ट के साथ कि इफ any participant want to ask some question and if anyone has some query then he or she can ask, otherwise we are going to start how to use Google Meet. Is there any query? Is there any question from the participant? Please tell me.
I'm saying here, please ask any technical question. Is there any question, any query? Then you can ask me. अभी देखिए यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को जो बतलाया कि जो जूम ऐप है, इसका एडवांटेज ये है कि इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और इसका जो इन्वायरमेंट है ये वेरी यूजर फ्रेंडली है। और इसी तरीके से इसके अंदर जो है पार्टिसिपेशन करने के लिए बच्चों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बच्चे जो है आसानी से जूम मीटिंग के अंदर इंटर हो सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर आप फ्री वर्जन को यूज करते हो तो उसमें जो है आपको 40 मिनट की टाइम लिमिट भी मिलती है, यानी 100 पार्टिसिपेंट भी मिलेगा और 40 मिनट की टाइम लिमिट मिलेगी। ये भी एक उसका लिमिटेशन है फ्री वर्जन का। लेकिन अगर आप लोग पेड वर्जन यूज करोगे तो ये टाइम लिमिट नहीं रहेगी। पेड वर्जन यूज करके आप इस टाइम लिमिट का जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम कर सकते हो। पेड वर्जन को यूज करके 100 पार्टिसिपेंट का जो लिमिटेशन है उसको आप रिमूव कर सकते हो। लेकिन एक मसला जो यहाँ पर है कि जो पार्टिसिपेंट हैं, जब एक मतलब आपने मीटिंग को स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट करने के बाद जब पार्टिसिपेंट आपकी मीटिंग में आपने स्टार्ट कर दिया उसके बाद वो आपकी मीटिंग में ऐड होना चाहते हैं तो अगेन एंड अगेन आप लोगों को उनको एडमिट करना पड़ता है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन अगर आप चाहते हो